Very good morning in Jai Hind. So we're going to discuss this editorial page of Indian Express of 1st of March. बहुत अच्छा एक आर्टिकल आया है. It is related to Pakistan and we will talk about it. आपको मैंने बार बार समझाया है कि if you really want to build your analytical thought process, what you need to do is you have to go in between the lines. And beyond going in between the lines, it is rather more crucial that you go by each and every word. So we'll do this article together and then you read it again and then you make an opinion about it and that will help you. So who is the author? Author is Sharat Sabharwal. And you should know why is this author relevant. So you'll go down and here you'll see writer is a former High Commissioner to Pakistan and author of India's Pakistan Condom, managing a complex relationship. So we all know how complex the relationship that we share with our neighbor Pakistan. Now what is the recent thing that has happened in Pakistan which is of importance is that there was an election held. And peculiarity of that election is that the person who won the election was not even fighting it. So Tehreek-e-Insaf जो इमरान खान साहब की पार्टी है उसने जीते backed by the independent candidates who were not fighting on the ticket of Tehreek-e-Insaf but they were supporting Tehreek-e-Insaf. And otherwise also if you gauge the mood of the public in Pakistan you will find that they're more inclined towards Imran Khan because they say that those 3 years were better than these. What is going to happen? Corruption is the major issue that is bothering Pakistan and they are as such running on loans. अभी उनका एक टर्म भी ख़त्म होने वाला है जो कुछ पैसे IMF ने दिए थे वो भी ख़त्म होने वाले थे. इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है शरद सब्रवाल साहब ने. पहले तो इसका ये जिस्ट पढ़ते हैं तो ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान इंटरनल कंपल्शंस मेक अ केस फॉर एक्सपैंडिंग द टैक्टिकल थॉ विद इंडिया बियॉन्ड द रिस्टोरेशन ऑफ LOC सीज फायर इन 2021. थॉ इज़ व्हाट? थॉ इज़ कि अगर मान लीजिए एक बर्फ़ जम गई है रिलेशनशिप में तो उसको हमें थोड़ा सा ब्रेक करने की ज़रूरत है. एंड लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड्स इन पाकिस्तान हैव बीन calling for restoration of bilateral trade. The ongoing suspension of trade hurts the Pakistan economy far more than it does India. However, the room for maneuver for new government will remain constrained by 3 factors. What it wants to say is that there are a lot of people who are trading in Pakistan, or the tradesmen or the businessmen of Pakistan. They want this relation, the trade relation between India and Pakistan should open. It is in their interest, of course. And how now India has emerged as more of a kind of a nation which can actually affect people economically. आप देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी सर जो हैं हमारे वो 2 दिन के लिए लक्षद्वीप में चेयर पे जाके क्या बैठे, हाय तौबा मच गई मालदीव्स में. और बंद हो जाएगा बता रहा हूँ मालदीव्स. ये स्थिति आने वाली है उनकी. इसीलिए कहते हैं ना कि दुश्मन को थोड़ा सोच समझ के ही ललकारना चाहिए. ये नहीं कि यूक्रेन की तरह, जैसे कि यूक्रेन ललकार दिया जाके रशिया को, है ना, जाके ललकार दिया बिना मतलब का कि नेटो का सदस्य बनूंगा. अब नेटो भी उसका साथ नहीं दे रहा है, ज़ीरो सपोर्ट है उसको. अब एक एक करके उसके सिटीज़ खाली होते जा रहे हैं एंड रशिया उनको कैप्चर करता जा रहा है. ये भी नहीं कि अब ट्रूस कर लूँ, डिक्लेयर कर दूँ. 50 साल पहले वही बात, वही मालदीव्स का दिमाग ख़राब हुआ कि इंडिया से पंगा लिया. टूरिस्टें नहीं जाएगा तो मालदीव्स में है क्या? मैं तो गया हूँ, वहाँ पे कुछ नहीं है. वहाँ ज़ीरो. There is no manufacturing, there is no service sector, there is no economy, there is no, only thing they have is the fish. फिश में भी उनका क्या है ना कि उनके पास पोर्ट्स नहीं है. तो पोर्ट्स नहीं है तो क्या वो एंकर पे ही आके फिशिंग एंड लोडिंग अनलोडिंग होती है. फिशिंग एज एन इंडस्ट्री कितना ग्रो करेगा? मुझे तो नहीं लगता वहाँ कोई बड़े शिप्स जाएंगे और वहाँ से फिश उठाएंगे. इतने लेवल की इंडस्ट्री भी नहीं है उनकी फिशिंग की. आई डोंट थिंक दे हैव दैट मेनी पीपल हु कैन सर्व इन इंडस्ट्री. तो ये सब इश्यूज़ हैं. तो एनीवेज हमारा टॉपिक डिवर्ट हो जाएगा. तो क्या कह रहा है ये पहला टाइम इनका जो ओपनिंग का है. ravaged by the harmful policies of the army led establishment, as you know, and one of the blessings which India has in democracy, that army has no role to play. It is purely legislative kind of a democracy that we have. Chosen people from the government, they only talk about policies. Army doesn't talk about policies and it should not. आप कोई भी देश देख लीजिएगा, बर्मा को ले लीजिए, आप पाकिस्तान को ले लीजिए, आप और भी कई कंट्रीज है जहाँ पे आर्मी ने जैसे कि फॉर सम टाइम व्हेन इदी अमीन वाज देयर, युगांडा क्या हाल हो गया उसका. देन जहाँ पे भी आर्मी लेड एस्टैब्लिशमेंट गवर्नेंस में आएगी ना, गड़बड़ा जाएगा मामला.
आर्मी का काम है देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, और आर्मी को बस उतना ही करना चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं करना चाहिए. So, restore a modicum of internal stability and puts the economy on even keel. Even keel का मतलब इन्होंने कहाँ से लिया है? शिप से लिया. तो शिप का जो बॉटम वाला पोर्शन होता है ना, उसको बोलते हैं कील, जो मेन फ्रेम होता है बीच वाला. इवन कील मतलब शिप, इवन कील मतलब शिप ऐसे नहीं है, ऐसे टिल्ट हो गई तो इवन कील नहीं है, या ऐसे टिल्ट हो गई तो इवन कील नहीं है. सीधी खड़ी है शिप मतलब इवन कील. तो पाकिस्तान की इकॉनमी को भी इवन कील पे लाने की ज़रूरत नहीं. फिर आगे ये कह रहे हैं, हाउ इट इलेक्शन हैज़ बीन अ थ्रोबैक ऑन इट्स पास्ट और वाइड स्प्रेड पॉल रिगिंग. एंड हाँ, ये बातें भी बहुत हुई थी कि पॉल रिगिंग हुई है एंड बहुत सारी धांधलेबाजी हुई है, विच आई ऑल्सो एग्री. अब क्या हुआ देखिए, किसी भी पार्टी को नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी नहीं मिला. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंस. तो पीटीआई को तो लड़ने ही नहीं दिया ना. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की पार्टी, वो तो जेल में बंद है, तो वो तो लड़े नहीं. तो उनके बैक्ड इंडिपेंडेंट लड़े और वो सबसे ज़्यादा जीत गए. इसी से आप कन्फ्यूजन समझिए कि देश का रुझान उस तरफ है. तो डिस्पाइट फाइटिंग एज एन इंडिपेंडेंट दे वॉन दैट एंड हु हैव सिंस देमसेल्फ party attack of joining a little known Sunni who have since got themselves a party tag by joining a little known. अब इंडिपेंडेंट्स ने क्या किया, एक पार्टी का भी टैग ले लिया. कैसे? उन्होंने एक लिटिल नोन पार्टी को ज्वाइन कर लिया, उसका नाम है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल. तो अब एक तरह से वो पार्टी है, तो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो क्या है, पार्टी है. सो नाउ दैट इज अ ब्लॉक. सो आइडली दे शुड हैव बीन इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, बट उनको बुलाया नहीं. तो क्या किया, कंसिक्वेंटली द सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन फॉर नवाज, तो उनको बुलाया गया टू सेट द गवर्नमेंट विद शहबाज शरीफ एज प्रेसिडेंट. तो यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नवाज शरीफ को प्रेसिडेंट नहीं बना रहे हैं. उसका रीज़न भी होगा बिकॉज करप्शन चार्जेस उन पर बहुत थे, तो हो सकता है पब्लिक एकदम आउटक्राई हो जाती. तो शहबाज शरीफ साहब को बना रहे हैं. और थोरोबैन पीपीपी जो है, बंजीर भुट्टो की जो पार्टी थी, जो आजकल आसिफ अली जरदारी जो हैं और उनके जो बेटे हैं बिलावल भुट्टो, उनकी पार्टी है. सपोर्ट द गवर्नमेंट इन रिटर्न आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या डिमांड किया है, बीइंग मेड द प्रेसिडेंट और सम अदर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट. आसिफ अली जरदारी साहब को बनाया जाएगा प्रेसिडेंट. मतलब देखिए कैसे गेम कर रहे हैं ये लोग नेशन के साथ. Therefore, Clement looking for support of 20 of the smaller parties, notably इनको दोनों को मिला के भी बेयरली हाफवे मार्क हो रहा है, बेयरली. तो छोटी पार्टीज को भी ये लोग लेजिस्लेचर्स को लगा रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान एंड इस तरह से ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं. बहुत ये भी इन्होंने शब्द सी से लिया है कि द न्यू गवर्नमेंट टेक्स चार्ज इन टाइम इन पाकिस्तान फाइंड इटसेल्फ इन अ चॉपी वाटर. चॉपी वाटर क्या होता है, समुद्र का पानी जब बहुत ख़राब, सी स्टेट ख़राब होता है. हम लोग जब सर्विस में जब हम थे तो हम उसको बोलते हैं सी स्टेट 3, 4 का मतलब बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, 5 मतलब बहुत ही ख़राब है, सी स्टेट 1 मतलब अच्छा है, 2 काम है, 3 से ख़राब होना शुरू होगा. तो चॉपी वाटर मीन सी इज़ वेरी बैड. तो उसी तरह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है चॉपी वाटर में है, मतलब पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इन अ वेरी बैड शेप. सो फाइंड इटसेल्फ इन चॉपी वाटर्स, अ प्रिकैरियस इकॉनमी. शब्दों को भी पकड़िए आप लोग. प्रिकैरियस बहुत अच्छा शब्द है, डेंजरस. अ प्रिकैरियस इकॉनमी, sharp political polarization and fraught security situation. It will be faced with tough challenges including PTI's obstructionist tactics and widespread resentment against ball rigging. मतलब बहुत ख़तरनाक समय में ये गवर्नमेंट बनने की जा रही है. बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, इकॉनमी डावाडोल है, बहुत सारे इंटरनल बैकलैशेस चल रहे हैं एंड उसके अलावा पीटीआई का आउटबर्स्ट होगा ही, बिकॉज उनका ही कहना है कि तुमने इलेक्शन ठीक से करवाया ही नहीं है, हम और सीटें जीतते और हमारी सरकार बनती और तुम बेवकूफ़ बना रहे. तो इन सब चैलेंजेस के बीच गवर्नमेंट बन रही है. उसके बाद PPP has so far refused to okay the glue that kept PML and PPP together in the last. They shared an anxiety about. हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा कि क्यों डरे हुए हैं ये लोग. जैसे हिंदुस्तान में भी अगर आप देखेंगे तो डर क्या है पार्टीज का, वो ये डर है कि मोदी साहब से डर है. वैसे ही वहाँ पे भी द ग्लू दैट इज कीपिंग दीज टू पार्टीज टुगेदर इज नॉट दैट हम अच्छे हैं, ये कि वो बहुत अच्छा है. इमरान खान की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है. अब तो उसको जेल में डाल दिया इन्होंने, अब पता नहीं उसका क्या करेंगे ये लोग. कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट.
people are still in love with Imran Khan and they want him as the prime minister. इनको पता है. However, in case PP continues to stay out, it will be free. अच्छा, PPP जो कह रही है वो बाहर से गवर्नमेंट बनाओ, गवर्नमेंट के अंदर नहीं घुस रही है, तो ये ऐसे लोग बहुत खतरनाक हो जाते हैं. जो बाहर से सपोर्ट करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा उंगली वही करते हैं. तो continues to, however, in case PPP continues to stay out, it will be free to question the government policies and worse, still may ditch. Still may ditch if the political costs rising. जैसे ही वो ना मतलबी जो लोग होते हैं, तो गवर्नमेंट में है बट नहीं है, मज़े सारे लेंगे, जरदारी साहब को प्रेसिडेंट भी बना देंगे और गवर्नमेंट को उंगली भी करेंगे. Further, the setback suffered by the army as a result of impressive showing of election will not put it out of the business governance. However, having consolidated position with army following the PTI violence against some establishment in May 23, army chief has remained engaged in governance matters. 23 का आपको पता होगा मई में क्या हुआ था. 23 में वो जो इमरान खान के सपोर्टर्स ने जाके पूरा उनका वो तोड़ा ओड़ा था. ही इज अनलाइक उस समय फर्स्ट टाइम देयर वाज एन एक्शन अगेंस्ट द मिलिट्री. अदरवाइज पाकिस्तान की जो जनरल पब्लिक है वो भी बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है टू सपोर्ट मिलिट्री. दे थिंक कि हमारी आर्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है. अब जनरल पब्लिक की कभी कभी वीडियोस वगैरह देखेंगे सुनेंगे तो दे थिंक देयर आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. एक तरह का एक नैरेटिव बिल्डअप कर दिया है कि आर्मी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इट इज़ व्हाट इज़ होल्डिंग इट. बट फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल वेंट ऑन द स्ट्रीट एंड दे वेंट इनटू अ जनरल्स हाउस. उसका तोड़ फोड़ किया, आपने देखा ही होगा. ठीक है. नवाज शरीफ has passed up the prime minister in favor of his brother. ये पता नहीं क्यों किया. who is more acceptable to army. हाँ, नवाज शरीफ को शायद आर्मी ने बोला होगा भैया तुम रहने दो, तुम अपने भाई को ही बनाओ. बिकॉज ऑफ द पुअर नेशनल असेंबली कंसिक्वेंट गवर्नमेंट आर्मी मैनेजमेंट he has invested more in Punjab where his party needs to revive its political by giving chief ministership to his daughter. अच्छा, अब ये देखिए, ये वाली बीमारी जो इंडिया वाली है वो वहाँ पे भी है. तो पाकिस्तान नवाज शरीफ का भाई प्राइम मिनिस्टर, अब बेटी बन जाएगी चीफ मिनिस्टर. मजाक बना के रखा है सारा. को समझ ही नहीं आता है. हम लोग को अगर सच में अगर पॉलिटिकल रिवाइवल हिंदुस्तान में करना है ना, तो मेरे को लगता है कि हमें ये जो हेजिमनी है कि मेरा बेटा और मेरे बेटा ही पार्टी का प्रेसिडेंट बनेगा और मेरा बेटा ही चीफ मिनिस्टर बनेगा. जितनी रीजनल पार्टीज हैं सबका यही है. ममता बनर्जी का अब तक कोई नहीं था, अब तो भतीजा शुरू हो गया अभिषेक बनर्जी. तो ये बहुत ही गलत है, ये नहीं होना चाहिए. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नेपोटिज्म. बेटी का बेटा, बेटी का बेटा, बेटा मजाक बना रखा है. इतना बड़ा देश है, सबको दो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, दम तो आने दो. तो बेटी को बना देंगे वो. पॉलिटिकल हेयर जो है उनकी मरियम नवाज हैं, जो उनकी बेटी हैं. हाउएवर विल हेल्ड कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन बोथ. ओके, बिकॉज द पोल्स एंड प्रेशर इनकमिंग गवर्नमेंट लाइकली टू वीक. अभी अनस्टेबल गवर्नमेंट बनेगी, ये बहुत सही इन्होंने कहा है. इतना पॉलिटिकल पुल एंड प्रेशर है. बाहर से आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बने हुए, उनकी बाहर से सपोर्ट करेगी, वही खींचती रहेगी. पीटीआई वाले नाक में दम कर देंगे. थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी टफ एंड मुझे नहीं लगता ये गवर्नमेंट भी बहुत दिनों तक चलने वाली है. बजट डेफिसिट, आप समझते हैं बजट डेफिसिट क्या है? अगर नहीं समझते तो प्लीज़ इसको आप पढ़िए. डेफिसिट का मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, बजट डेफिसिट क्या है. बेसिकली मोटा मोटा ये कि खर्च ज़्यादा पैसे कम है. बट इसको आप अच्छे तरीके से इकोनॉमिक लैंग्वेज में भी इसको पढ़ने की और समझने की कोशिश कीजिए. कंट्री डजंट हैव मनी टू फाइनेंस द एनुअल external sector gap of $20 to $25 billion over the next few years. The short-term $3 billion arrangement negotiated by the first Shahbaz government with IMS, जो उनको $3 बिलियन मिले थे, वो भी मार्च में ख़त्म होने वाले हैं. पाकिस्तान एक्सटर्नल क्रेडिटर्स इंक्लूडिंग चाइना हैव बीन सर्कमस्पेक्ट ऑफ lending more money और रिस्ट्रक्चरिंग पास्ट लोन्स. तो चाइना भी बहुत ज़्यादा उसमें ध्यान नहीं दे रहा है. फिर आगे कुछ और क्या चीज़ें हैं, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी का भी इशू है, तहरीक तालिबान बलोच वाला इशू. प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़िए. इट विल गिव यू मोर इंसाइट अबाउट पाकिस्तान एंड व्हाट एग्जैक्टली इज़ रन विद द पाकिस्तान इकॉनमी के साथ समस्या क्या है. किसी भी टॉपिक को जितना आप डिटेल में पढ़ेंगे, जितना आप एनालिटिकली पढ़ेंगे और जितना आप उसको पॉजिटिवली लेके जाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा है. In-depth knowledge is the key to participate in group discussions, to answer favorably in the interview. Remember this. With this, thank you. Jai Hind. Bye-bye. We'll come back again tomorrow and we'll discuss one more topic. If you like this way of my discussing general awareness, do let me know. Share to this channel and subscribe to it, and
Let me know if it is working out fine or any changes are required. Looking forward to your comments. Thank you. Bye bye. Jai Hind.